Hello everyone. From today we are start the next topic of mathematics, that is a linear algebra. In community section I have shared the three topics and maximum students selected the linear algebra. So from today's lecture we will start the linear algebra. Linear algebra is very important topic of mathematics. As you know, the matrices, matrix transformation, find the inverse of matrix, this all the concept. Actually this is a matrices, that topic is related to the linear algebra. तो लीनियर अलजेब्रा का ही टॉपिक है मैट्रिसेस. सो पहले आता है वेक्टर स्पेस और उस वेक्टर स्पेस में आएगा ट्रांसफॉर्मेशन एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वी विल गेट द मैट्रिक्स. तो मैट्रिसेस ये लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है. So from today's lecture we start the linear algebra and first topic of linear algebra is a vector space. What is vector space? How we are defining the vector space and then how to show that the given vector space is a vector space. So for that we require some basic concept. और ये जो वेक्टर चैप्टर है उसको समझने के बाद में हम देन सेकेंड टॉपिक स्टडी करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन एंड आफ्टर दैट ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन फाइंड द मैट्रिसेस, how to find the rank of matrix with the help of this transformation in linear algebra. That all the things we are studying in this linear algebra chapter. So this is the first lecture. So in this lecture I will discuss the basic concept which is required to understand the linear algebra. So maximum क्या होता है, समटाइम्स ऐसे मैथमेटिक्स में नोटेशन होता है कि जो हमें समझ में नहीं आता है कि उसको क्या कहना है. अगर वो नोटेशन, उसका जो लैंग्वेज है मैथमेटिक्स का, इफ इट इज क्लियर टू यू देन यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड यू कैन एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. और लीनियर अलजेब्रा एक छोटा सा नाम है, बट एक्चुअली टू कंप्लीट दिस लीनियर अलजेब्रा इट टेक्स लॉट्स ऑफ lectures. So must subscribe to the channel so that you can get the notification of my next video, and this topic is very important. So share this video with your friends also. So let's start with the first point, that is a notation of r raised to the power n. Here r raised to the power n maximum time we use in the linear algebra. What is the r raised to the power n? It is a collection of n tuple. That means here r raised to the power n is collection of element which is in the form of x1, x2 and so on up to the xn, such that this xi's are real number and here r varies from 1 to n. So देखो ये हम लीनियर अलजेब्रा में मैक्सिमम टाइम ऐसा नोटेशन यूज करते हैं. इसका मीनिंग क्या होता है, हमने 11-12 तक के कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टडी कर लिया. अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक्चुअली होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट एंड ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी है. इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर such that first element is a member of first set and second element is a member of second set. It is a definition of Cartesian product. अगर यहाँ पे a और b दोनों भी सेट मैंने रियल नंबर लिए तो क्या हो जाएगा, we know the set of real number और रियल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट ऑफ रियल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट विद सेट ऑफ रियल नंबर लिया तो वी गेट r क्रॉस r. तो यहाँ पे क्या होगा, दो ही सेट है तो इट इज ए कलेक्शन ऑफ order pair whose first and second both element are belongs to R, because first element is a member of first set, second element is a member of second set, and here both the set are set of real number. That means x and y both are real number. और ये जो R cross R है इसी को डिनोट कर सकते हैं हम R square से. So it is a product of R cross R two times, that's why we are taking it as R square. अगर मैंने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ आर स्क्वायर आर क्यूब लिखा होता तो आर क्यूब का मीनिंग क्या होता था, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर थ्री टाइम्स एंड इट इज ए कलेक्शन ऑफ ट्रिपलेट. बिकॉज यहाँ पे तीन सेट का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा, थ्री सेट में से एक एक एलिमेंट बिलोंग होगा. तो यहाँ पे होगा कलेक्शन ऑफ ट्रिपलेट हुज फर्स्ट एलिमेंट इज ए मेंबर ऑफ फर्स्ट सेट, second is a member of second set and third is a member of third set. But ultimately यहाँ पे तीनों भी set of real number है. So in short we can say this x, y, z are real number. तो ये हमने 12 तक की स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं कि what is a r square and what is a r cube. Now here in linear algebra we will study about the r raised to the power n. तो आर रेस टू पावर एन इन शॉर्ट क्या होगा, ये भी आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा बट ये आर 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 ऐसे कहाँ तक के प्रोडक्ट रहेगा, सेट ऑफ रियल नंबर का प्रोडक्ट अप टू एन टाइम.
So the element of this r raised to power n will be in the form of n tuple. तो जैसे इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं, इसको ट्रिपलेट कहते हैं, सिमिलर वे दिस इज अ कलेक्शन ऑफ n एलिमेंट, मतलब ये आपका एक सिंगल एलिमेंट है जो कि कैसे रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ n टपल. तो ये कहलाएगा एलिमेंट ऑफ r raised to power n. So please remember this concept of r raised to power n, because when we have studied the example of linear algebra, that time we can solve the r raised to power n is a vector space with over the field of r. तो ऐसे कुछ क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा के अंदर हम स्टडी करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन से एलिमेंट जाते हैं. अगर मैंने आपको कहा कि मेरे पास में एक एलिमेंट है जिसमें ऐसे 1 2 3 अप टू दी n, तो ये एक सिंगल एलिमेंट है और इसमें सारे के सारे एलिमेंट कैसे रियल है. सो इट इज ए मेंबर ऑफ r raised to power n. और जरूरी नहीं कि ये सारे डिस्टिंग हो, मे बी ऐसे हो सकता है कि फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट इज 1, सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम सेकेंड सेट इज अगेन 1, थर्ड एलिमेंट भी जो हम थर्ड सेट से लेंगे अगेन इट इज 1, और nth एलिमेंट फ्रॉम r raised to r सेट इज अगेन 1. तो यहाँ पे 1 1 1 n टाइम्स कलेक्शन किया है, तो ये भी क्या होगा n टपल, ऑल एलिमेंट में भी सेम, सो इट इज अगेन अ मेंबर ऑफ r raised to power n. तो r raised to power n में n टपल का कलेक्शन होता है. दिस इज अ फर्स्ट कंसेप्ट. नाउ द सेकंड कंसेप्ट इज ग्रुप. हियर सेकंड इज group. So what is a group? Let's suppose we are given the algebraic structure G, or here we can take binary operator star. G star is said to be group if it satisfies the four conditions. So here the four conditions are: first one is a closure, second is associative, third is existence of identity, and fourth is inverse. So any G is a collection of element and star is an operator. अब स्टार ऑपरेटर मतलब एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. तो वो G के जो एलिमेंट है उनसे आप एडिशन करना चाहते हो, मल्टीप्लिकेशन, दैट इज अ ऑपरेटर. तो उस ऑपरेटर के रिलेटेड अगर ये फोर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो वी कैन से इट इज ए ग्रुप. जैसे क्लोजर मीन्स इफ वी टेक एनी टू एलिमेंट from the set G, then their A star B also belongs to G. For example, we consider, let's suppose our G is a set of integers. अगर G set of integers है, तो you can take any integers, any integer you can take. Let's suppose I will take particular integer 1 and 2. These are the integer, and if we take their addition operator, here star means it is a given operator, binary operator. Let's suppose I will consider it is a plus. So if we apply this operator, so you will get the new element which is again a member of our given set. So if we consider any two element of Z, then their addition is again belongs to Z. So we can say the G or this Z is closed under operator addition. Now next is associative. Associative means changing of bracket is allowed, then that is called the associative. For example, I will take here three element from set G, and A star B star C is equals to A star B star C. So see here एलिमेंट का ऑर्डर वही है ABC ABC, बस फर्स्ट टू एलिमेंट के ऊपर ब्रैकेट था, नेक्स्ट में क्या कर दिया लास्ट टू एलिमेंट. मतलब चाहे आप पहले दो का एडिशन निकालो और फिर थर्ड एलिमेंट ऐड करो, या फिर लास्ट टू को ऐड करके देन फर्स्ट ऐड करो, तो दैट इज अ एसोसिएटिव इफ इट सेटिस्फाइड द कंडीशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ G. ऐसे नहीं है कि पर्टिकुलर कुछ एग्जांपल के लिए, बट इफ इट सेटिस्फाइड फॉर ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट G, then we can say G is associative under this operator star. For example, in a Z, if we consider any three elements and apply the star operator, so here I will consider star is a plus operator. So 2 plus 3 plus of 4. So if we solve this term, 5 plus 4, 4 plus 5 is 9. And instead of that, if we take the addition of last two elements, so 3 plus 4 is 7, 7 plus 2 is ultimately, it is again a
9. So that means either you take the first two element addition, then add third, or take the addition of last two element and then add first, we get the same answer. So we can say Z is associative under operator plus. और यहाँ पे पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया है, बट वेन वी आर स्टडी द whether it is satisfying associative closure all the properties, that time we have to apply the general rule, because यहाँ पे all element होना मस्ट है, मतलब यहाँ के जी के सारे एलिमेंट के लिए ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, जी के सारे एलिमेंट ये क्लोजर कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए. पर्टिकुलर एग्जांपल यहाँ पे लेते नहीं है, आपको यहाँ पे पूरे एलिमेंट जेड के अंदर जितने एलिमेंट है उनमें से कोई भी एलिमेंट हो गए तो स्टिल ये लॉ होल्ड होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड द लॉ इज सेटिस्फाइड फॉर दिस सेट जेड. नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. अब किसी भी सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, तो आपको पहले चेक करना है कि आप ऑपरेटर कौन सा यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैंने ऑपरेटर प्लस लिया है. तो आइडेंटिटी मीन्स क्या होता है कि विच एलिमेंट वी आर एडेड इन ए एलिमेंट ऑफ जेड वी गेट द सेम आंसर. दैट मीन्स हियर ऑपरेटर, लेट्स सपोज ए स्टार ई इक्वल टू हियर ई स्टार ए इक्वल टू ए. तो E is called a identity element. Then E is identity. So this is the definition of identity. तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि A के ऊपर ये ऑपरेटर ऑपरेट किया विद एलिमेंट E, तो you will get the answer A, और E star A ultimately you will get the answer A. तो E is the element such that कि आप कोई भी एलिमेंट ए लेते हो तो उसके ऊपर ऑपरेट करोगे तो स्टिल यू गेट द सेम आंसर. देन वी कैन से ई इज अ आइडेंटिटी. फॉर एग्जांपल जेड. जेड ये क्या है आपका कलेक्शन ऑफ इंटीजर. अगर आपने यहाँ पे कोई एलिमेंट लिया 4, तो इसमें हम प्लस ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे और आपको आंसर फिर से क्या चाहिए 4. तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है इसमें ऐड करोगे तो सो यू विल गेट द आंसर 4 अगेन. इट इज ए 0. So 0 you can add in any number, ultimately you will get the same answer. So Z के अंदर ये 0 present है क्या चेक करो, तो yes 0 is present in our set of integer. तो we can say the 0 is a identity element exist in Z. और how to write this? You can write here a plus 0 equal to 0 plus a equal to a for all a belongs to Z. तो that is a कलेक्शन ऑफ इंटीजर से कोई भी एलिमेंट उठा के ये प्लस ऑपरेटर ऑपरेट करोगे विद 0, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, यू गेट द सेम एलिमेंट. तो इफ इट सेटिस्फाइड फॉर ऑल द एलिमेंट सो वी कैन से 0 इज आइडेंटिटी. इज इनवर्स. सो वेदर इनवर्स इज एग्जिस्ट फॉर ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट G और नॉट. हाउ टू चेक दैट? सो सी द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स इज हियर A and B are inverse of each other if A star B or B star A equal to identity element. तो गिवन ऑपरेटर आपको ऑपरेट करना है एलिमेंट के ऊपर और उन दोनों का आंसर अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है तो वी कैन से दिस टू एलिमेंट्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. तो इनवर्स एग्जिस्ट करना मतलब क्या होगा, जी के हर एक एलिमेंट को इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए. देन वी कैन से इनवर्स इज एग्जिस्ट फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी, और इनवर्स लॉ सेटिस्फाइड हो गया. अब हम अगेन इस एग्जांपल के ऊपर जाते हैं. फिलहाल हमारा जो जी सेट है वो इंटीजर का कलेक्शन है और ऑपरेटर हमने क्या लिया प्लस. सो नाउ हियर अगर हमने कोई भी एलिमेंट जेड का उठा लो तो उस एलिमेंट को लेट सपोज 4 है, तो 4 में क्या ऐड करोगे तो यू विल गेट द आइडेंटिटी एलिमेंट. अब जेड में आइडेंटिटी कौन था 0. इस जेड सेट के अंदर हमने अभी स्टडी किया था कि जेड इस सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है आपका. आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट जेड is 0. तो we require the answer 0 for inverse. तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है 4 में ऐड करोगे तो अगेन you get the answer 0. So it is a -4. And here -4 plus 4 is again 0. Now here 4 and -4 both are belonging to the set of Z. तो 4 का इनवर्स है -4
-4 का इनवर्स है 4 because the operator plus if we operate on that element तो you will get the answer identity element. तो 2 एलिमेंट्स के ऊपर वो ऑपरेटर ऑपरेट करना है और अगर वो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है वी कैन से देयर एलिमेंट्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. तो इस एग्जांपल में 4 का इनवर्स है -4 का इनवर्स है 4. अब सारे एलिमेंट के लिए है कि नहीं है कैसे चेक करेंगे. तो लेट्स सपोज A is any element belongs to the set Z. अब A अगर एनी एलिमेंट Z के अंदर है तो हर आपको पता है कि सेट ऑफ इंटीजर में 1 है तो -1 है, 2 है तो -2 है, 0 है तो 0 का प्लस 0 करोगे तो यू विल गेट द 0, 4 है तो -4 भी है. इसका मतलब है A अगर Z के अंदर है तो -A इज आल्सो बिलोंग्स टू Z एंड इसका आंसर क्या होगा -A plus A or A plus -A is ultimately 0 for all A belongs to Z. So any element of Z if we take then their inverse is exist in Z. So we can say Z having inverse every element of Z having inverse with respect to operator plus. If we conclude the statement, so we can say Z satisfied all the 4 condition with respect to operator plus, so it is a group. तो ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा. ग्रुप लिखने का तरीका क्या होता है वो सेट और जो ऑपरेटर आप ऑपरेट कर रहे हैं वो ऑपरेटर. सो वी कैन से Z plus is group because Z satisfying all 4 conditions. This is required when we are satisfying the vector space. वेक्टर स्पेस में ये कंडीशन हमें यूज करना पड़ता है. इसी में नेक्स्ट होता है एबिलियन ग्रुप. अब इस ग्रुप की जगह पे अगर मैं नाम दे दूं एबिलियन ग्रुप तो here just we change the wording. If we take third point abelian group. What is the abelian group? अब पहले तो वो ग्रुप होना चाहिए मतलब ये चारों कंडीशन उसने सेटिस्फाइड करनी चाहिए. अब एबिलियन वर्ड एक्स्ट्रा ऐड किया तो उसमें वन कंडीशन यू हैव टू ऐड मोर एंड दैट इज नथिंग बट कम्यूटेटिव. If this fifth condition is also satisfied by this set, then we can say it is a abelian group. तो पहले ग्रुप होना चाहिए 4 कंडीशन सेटिस्फाइड और after that fifth condition will be coming commutative, then we can say it is a abelian group. So what is a commutative? Commutative means if you operate the A star B and equal to B star A, तो यहाँ पे एलिमेंट इंटरचेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वी कैन से इट इज ए कम्यूटेटिव. फॉर एग्जाम्पल इसी सेट के अंदर हमने प्लस ऑपरेटर लिया हुआ है. अब आप दो एलिमेंट Z के कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो और उनका एडिशन करो तो चाहे आप 3 + 4 करो इंटीजर्स में या फिर 4 + 3 करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज 3 + 4 भी 7 होता है 4 + 3 भी 7 होता है और इट इज एप्लीकेबल ऑल द एलिमेंट्स ऑफ Z. सो दैट मीन्स फॉर ऑल A, B belongs to Z, A plus B equal to B plus A. तो Z के कोई भी एलिमेंट उठाओगे तो उनके एडिशन में A plus B और B plus A ऑलवेज इक्वल होता है. तो वी कैन से दिस सेटिस्फाइड द कम्यूटेटिव लॉ. तो Z ऑलरेडी क्या था Z plus 1 इज ए ग्रुप और साथ में इसने फिफ्थ कंडीशन भी सेटिस्फाइड की तो एडिशनली वो क्या हो गया एबिलियन ग्रुप. So in this way you have to prove the given set whether it is abelian or not. अब देखो सोच के देखो अगर मैंने यहाँ पे ऑपरेटर चेंज किया प्लस की जगह पे मल्टीप्लिकेशन दिया तो इज इट ए ग्रुप. हियर क्लोजर इंटीजर any two integer product is again integer so closure will be satisfied. Associative multiplication you know that चाहे आप 3 into 2 into 4 करो या फिर 3 into 4 पहले करके then 2 से मल्टीप्लाई करो you will get same answer. So it is associative is okay. What about the inverse? Identity and inverse. Multiplication के अंदर 1 is the element. When we are taking the multiply to any element you will get the same answer. So 1 may be here identity element in a Z with respect to multiplication. Here you take 1 into any element of Z, so you will get the answer A for all A belongs to Z. But 1 ये अगर identity element है तो inverse of 0 will not be exist क्योंकि inverse के लिए क्या होना चाहिए
वो एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आना चाहिए। और z ऐसा सेट है, इस z के अंदर 0 कंटेन है, और 0 को कुछ भी मल्टीप्लाई करो यू विल नेवर गेट द आंसर 1, बिकॉज 0 इंटू एनी एलिमेंट इज 0। और इनवर्स के लिए आंसर क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर इनवर्स, आइडेंटिटी एलिमेंट विल बी आवर आंसर। सो 1 multiplied to any element, you will never get the answer. That means here the inverse of 0 does not exist, and any one condition is failed, so we can say it is not group. तो यहाँ पे inverse exist नहीं है, so we can say z with respect to multiplication is not group. और अगर वो group नहीं है तो abelian तो आएगा ही नहीं, because for abelian group firstly you must satisfy the 4 conditions.